عید قریب فیصلاباد میں حقدار خود ہی حق سے محروم ہونے لگے۔ پنجاب سوشل اکانومک میں رجسٹرڈ افراد کے ایڈریس تبدیل، موبائل فون نمبر بھی بند، لوکل گورنمنٹ کے لیے پے آرڈرز کی ترسیل مسئلہ بن گئی۔ یو سی سیکرٹریز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، پے آرڈرز واپس لوکل گورنمنٹ کے پاس جمع کرا دیے گئے۔ یونین کونسل ماندہ پے آرڈرز لوکل گورنمنٹ کو واپس بھجوا دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ ایڈریس تبدیل ہونا یا مل سکنا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ گھرانوں کے سربراہان کے موبائل نمبر بند جا رہے ہیں، جس وجہ سے ان پے آرڈرز کو پہنچانا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ مہنگی بجلی، مارک اپ ریٹ اور سیلز ٹیکس ایکسپورٹرز کے پاؤں کی زنجیر بن گئے۔ مجموعی ملکی برآمدات میں خسارے کے بعد ٹیکس برآمدات کو بھی بیک گیئر لگ گیا۔ ایکسپورٹر سہولتوں کی عدم فراہمی اور حکومت کی سرد مہری پر نالاں، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملکی برآمدات میں مجموعی کمی کے ساتھ ٹیکسٹائل برآمدات کو بھی بیک گیئر لگ گیا۔ ٹیکسٹائل برآمدات کم ہونے پر ایکسپورٹرز بھی میدان میں آ گئے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز مہنگی بجلی، مارک اپ ریٹ اور سیل ٹیکس کا مسئلہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایکسپورٹر خالد ندیم کا کہنا تھا کہ حکومت سے مطالبات کر رہے ہیں مگر کوئی سہولت نہیں مل رہی۔ حکومت صرف اعلانات تک محدود ہے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ برآمدات بڑھانے کے لیے ایکسپورٹرز کی سفارشات ماننا ضروری ہیں۔ ریجن میں ہی اتنے مہنگے ہیں تو عالمی منڈی میں کیسے مقابلہ کریں؟ ہمارے ریٹس ریجن وائز ہائی ہیں تو کسٹمر جو ہے وہ سلپ ہو کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک اس میں فیکٹر یہ ہے کہ ہماری ڈپ کے ہماری دسمبر نومبر میں چونکہ اینڈ ایئرز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اپ جاتی ہیں، اور جنوری میں اور فروری میں نیچرلی تھوڑا سا ڈپ آتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ منتھ یا اپریل تک چیزوں کو بہتر کریں گے۔ ایکسپورٹرز کے مطابق ریجن میں مہنگے ہونے سے آرڈرز ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ رمضان میں بھی ایل پی جی گیس کی پرواز جاری ہے۔ سرکاری قیمت پر ایل پی جی نایاب، شنیوٹ کے شہری پریشان۔ کہتے ہیں کہ ایل پی جی سرکاری قیمت 254، مارکیٹ میں 310 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ گھریلو سلنڈر بھی 300 روپے مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کمیل حیدر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ چنیوٹ میں سرکاری قیمت پر ایل پی جی نہ ملنے پر شہری پریشانی میں مبتلا۔ سرکاری قیمت 254 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں 310 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ کھلی گیس مل نہیں رہی، گھریلو سلنڈر بھی 300 روپے مہنگا مل رہا ہے۔ غریب لوگ کہاں جائیں؟ گیس فی کلو 320 روپے تک مل رہی ہے۔ کھلی گیس تو اول تو مل نہیں رہی، جہاں سے مل رہی ہے 310 320 روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے۔ ویسے 260-70 روپے ریٹ ہے گیس کا، تو گیس بہت مہنگی ہے۔ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ گیس کے ریٹ کو کم کیا جائے۔ بندہ کیا کرے، رمضان کا مہینہ ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، تو ہم گیس بھروائیں یا عید کی تیاریاں کریں، کیا کریں؟ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایل پی جی گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کر کے غریب عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ مین علیزیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ الائڈ ہسپتال 2 فیصل آباد میں دانتوں اور جبڑے کی سرجری کا منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ ٹریفک اور دیگر حادثات کے متاثرہ مریض علاج کے لیے دربدر۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ راجپال 1 کی پرانی ایمرجنسی وارڈ کے میڈیکل بلاک میں ڈینٹل سرجری یونٹ کا قیام شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، تاہم اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ یونٹ کی بحالی کے لیے انسٹرومنٹ سمیت دیگر مشینری تاحال درکار ہے۔ ایم ایس ڈینٹل راجپال 1 نے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ہمراہ وارڈز کا دورہ کیا تھا۔ ایم ایس راجپال 2 ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ یہاں لیب کا قیام مشکل ہے، اس لیے مین سرجری راجپال 1 میں ہی قائم ہوگی۔ او پی ڈی سطح کی سرجری راجپال 2 میں شروع کی جائے گی، تاہم ڈینٹل یونٹ اور سرجری کو فعال بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مختلف شعبہ جات ہیں 3 آرتھوڈونٹک کے علاوہ باقی آ رہے ہیں، یعنی فی الحال ابھی سرجری جو ہے نا، مائنر سرجری جو او پی ڈی جس کے لیے بے ہوشی وغیرہ نہیں چاہیے وہ ہو سکے گی، جو میجر سرجری ہے وہ لائٹ 1 میں ہی ہوگی۔ دوسری جانب اسپتال میں موجود شہری کا کہنا تھا کہ منہ جبڑے کا شعبہ فعال نہ ہونے سے یہاں مشکلات ہیں، اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ راجپال 2 میں شعبہ منہ اور جبڑا فعال بنایا جائے، کیونکہ مریضوں کا بہت رش ہے مگر شعبہ فعال نہیں ہے۔ ادھر ڈینٹل میں منہ جبڑے کا شعبہ نہیں ہے، ادھر کافی مریض آتے ہیں جاتے رہتے ہیں، تو وہ ہونا ضروری ہے ادھر۔ الائڈ ہاسپٹل 1 میں منہ اور جبڑے کے متاثرہ مریضوں کا رش دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر، مسافر اب سفر سے قبل خوبصورت ماحول سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ فیصل آباد میں بی کلاس جنرل بس سٹینڈ اپ گریڈ کرنے کا اب فیصلہ۔ عوامی منصوبے پر 30 کروڑ لاگت آئے گی۔ تفصیلات عمران اسلم کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب سرکار کو بالآخر فیصل آباد کے شہریوں کی سہولت کا خیال آ ہی گیا۔ حکومت نے فیصل آباد میں بی کلاس جنرل بس سٹینڈ کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کر لیا۔ ایف ڈی اے منصوبے پر کام شروع کرے گا۔ بی کلاس جنرل بس سٹینڈ کی اپ گریڈیشن پر 30 کروڑ لاگت آئے گی۔ جنرل بس سٹینڈ کی اپ گریڈیشن میں مسافر خانے، چلڈرن گراؤنڈ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ کمیشن آفس نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سے اپ گریڈیشن اسکیم کے حوالے سے ورکنگ پلان طلب کر لیا۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔
तो दूसरी जानिब रमजान में असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। टोबा टेक्सिंग में प्रमोशन बोर्ड के इजलास में 32 असातिज़ा को तरक्की दे दी गई। असातिज़ा को प्राइमरी से एलिमेंट्री स्कूल टीचर के ओहदे पर तरक्की मिली। एलिमेंट्री टीचर्स को सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्सिंग में महकमा स्कूल एजुकेशन के प्रमोशन बोर्ड के इजलास में 32 असातिज़ा को तरक्की दे दी गई। प्रमोशन बोर्ड का इजलास सीईओ एजुकेशन के दफ्तर में मुनक्किद हुआ। प्रमोशन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूल से एलिमेंट्री स्कूल टीचर के ओहदे पर तरक्की दी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को सेकेंडरी स्कूल टीचर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। साइंस, आर्ट्स और अरबी के असातिज़ा को एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। तरक्की मिलने पर असातिज़ा खुश। सीईओ ने असातिज़ा को दयानतदारी से फराइज की अदायगी करने की हदायत कर दी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में मौसम एक बार फिर खुशगवार होने को तैयार। पीडीएमए ने बादल खुलकर बरसने की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 से 27 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशें हो सकती हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रमजानुल मुबारक में रहा मौसम बड़े पैमाने पर तगय्युर का शिकार। माह सियाम के आखिरी अशरे में पीडीएमए ने मूसलाधार बारिशों बारे अलर्ट कर दिया। मुतलका महकमे के मुताबिक 25 से 27 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसेंगे। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में भी बरखा गर्मी को दूर भगाएगी और मौसम में रंगीनी आएगी। अब्रे रहमत अब्रे जहमत न बने की बात को मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका महकमों को एहतियाती इकदामात उठाने की हिदायत जारी कर दी गई है। कैमरामैन ईमान अली के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि डिवीजन भर में अवामी मसाइल जूं के तूं। फैसलाबाद मिल्लत रोड का शेखुपुरा रोड टूट फूट का शिकार। फैक्ट्री एरिया से बुल्हिका भुट्टो पार्क भी तबाहाल। शहीद मिल्लत पार्क का तिकोनी पार्क खस्ता हाल हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मिल्लत रोड ता शेखुपुरा रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर नोकीले पत्थरों के बायस गाड़ियों के टायर फटना मामूल बन गया। कई हुकूमतें आई और गईं, लेकिन सड़क की तामीर मुमकिन ना की जा सकी। शहरियों ने इंतजामिया से रोड की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद फैक्ट्री एरिया से मुनहिक्का भुट्टो पार्क तबाह हाल। घास का नामो निशान नहीं। पार्क धूल मट्टी में तब्दील हो गया। धूल मट्टी के बायस सांस की बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरी कहते हैं अरसद रात से पार्क की हालत बुरी है। फैसलाबाद में शहीद मिल्लत मार्केट का तिकोनी पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गया। देखभाल न होने से घास गायब, सफाई का इंतजाम भी नहीं है। शहरी शदीद मायूसी का शिकार हो गए। जिला इंतजामिया चिन्योट की नाकिस हिकमत अमली 2 मेन शाहराहों का ठेका एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ठेकेदार गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, जनागाह रोड और लाहौर रोड से मुल्हिका गली को उखाड़ कर गायब हो गए। गर्दो गुबार से मकीन सांस की बीमारियों में मुबतला होने लगे। पैदल चलना तक दुश्वार हो गया। अहमदपुर सियाल की बस्ती मियानी में सीवरेज का पानी जोहर में तब्दील हो गया। गटरों से उबलने वाला पानी तापुन का बायस बनने लगा। गंदे पानी पर मौजूद मच्छर बीमारियां फैलाने लगे। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। चिन्योट के मोहल्ला दिलखुशाब का सीवरेज सिस्टम बहाल कर दिया गया। सीवरेज लाइन की सफाई मुकम्मल कर ली गई। गलियों में जमा पानी निकाल दिया गया। मिल्लत रोड यूनिवर्सिटी टाउन के रहायशियों ने सरकारी रोड पर कब्जा जमा लिया। खुद साख्ता गेट लगाकर मुल्का इलाका मकीनों का रास्ता ब्लॉक। मुतासरीन गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। मूजोन इंतजामिया विफाकी मोहतसिब का फैसला भी खातिर में ना लाई। गेट हटाने से इनकार। शहरियों ने दादरसी के लिए सरकार से उम्मीदें बांध ली। तफसीलात फैसलाबाद से फसी नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए। मिल्लत रोड यूनिवर्सिटी टाउन की जानिब से शारे आम पर लगे गेट के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। यूनिवर्सिटी टाउन में 80 फुट रोड पर मिल्लत रोड ता यतीम खाना स्कूल कॉलेज के दरमियान खुद साख्ता तौर पर गेट नस्ब किए गए हैं, जिसके खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। इस मौका पर मकीनों का कहना था कि सरकारी रास्ते के दरमियान गेट लगाने से हमें शदीद परेशानी का सामना है। साल 2021 में गैर कानूनी गेट के खिलाफ वफाकी मोहतसिब फैसलाबाद फैसला भी दे चुके हैं, लेकिन ताहाल गेट खत्म नहीं किया गया। एफडीए को डायरेक्शन दी गई कि आप इस 24 घंटे इस रास्ते को खुला रखने के पाबंद हैं और इसको क्लियर करवाएं। तब से लेके अब तक इसके ऊपर पार्शली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। कभी मिली भगत हो जाती है, कभी असर व सूख हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये रास्ता नहीं खोला जा रहा। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि एक ही कॉलोनी में रहते हुए ऐसे तफरीक पैदा करना मुनासिब नहीं। रात के वक्त गेट बंद होने पर हमें तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। इस दौरान अक्सर डकैती की वारदातें भी रोनुमा हो चुकी हैं। जब कभी गेट से गुजरना हो तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बहस करते और धमकाते हैं, जिस पर अक्सर वक्त लड़ाई झगड़े का भी सामना करना पड़ता है। सारे सरकारी रोड है जी, ठीक है बिल्कुल। ये मतलब गड़े है ना बदमाशी बहुत करते अगो गन्ना सीधियां कर लेंगे, गाड़े गड़े अगो मारते। परसों की गल आ, क्लास का मुंडा सीगा ते ओहदे नाल इन्हां ने बट मारे पिस्तौल दे, ठीक है। सदर ने आप फड़ के कटवाया, सदर ने कुटिया बिल्कुल उन्होंने, ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यही है, सानू बहुत परेशानी होती है, खास तौर से फैक्ट्री रात में लेट भी निकली दा होर असीं उधर नहीं जान सकते जंगल अंदर। एफडीए हुकाम का कहना था कि इस तरह के गैर कानूनी इकदाम करने वालों से रायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून शिकनों के खिलाफ हरकत में आ गई। 5 रोज के दौरान 8 हाउसिंग सोसाइटीज के दफातर सील, गैर कानूनी तामीरात मलिया मीट कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डीजी एफडीए की हिदायत पर एफडीए एनफोर्समेंट टीम की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 5 रोज के दौरान 8 गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के दफातर सील करके गैर कानूनी तामीरात को भी मसमार कर दिया गया। एनफोर्समेंट टीम ने यूनिवर्सिटी टाउन और केनाल मोटरवे हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ भी एक्शन लिया, जबकि AR गार्डन, समुद्री रोड, एयर एवेन्यू, झंग रोड के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। एनफोर्समेंट टीम ने अहमदनगर में 8 सरकारी प्लाटों से काबजीन को भी हटाकर गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया। सनती शहर में कायम गुलशन कॉलोनी और इजाफी आबादी चंचलवाला के खिलाफ भी गैर कानूनी होने पर कार्रवाई की गई। कैमरामैन राना अदरीस के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। पहली से 8वीं जमात तक के सालाना इम्तिहानात खत्म। नए सेशन में दाखिलों के लिए एडमिशन डेस्क कायम कर दिए गए। हुकूमत नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए कोशिश, वालिदैन से बच्चों को स्कूल भिजवाने की अपील भी कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक सालाना इम्तिहानात खत्म होते ही दाखिला मुहिम शुरू। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तमाम सरकारी स्कूलों में आइंदा तालीमी सेशन के लिए एडमिशन डेस्क कायम कर दिए गए। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन सरदार मोहम्मद साजिद का कहना था कि सरकारी स्कूलों को मेयारी दरसगाह बनाने के लिए सहूलियात बेहतर बना रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री टेक्स्ट बुक्स मिली हैं, वो हमने स्कूल्स तक डिलीवर कर दिए हैं। वॉक्स का एहतमाम हो रहा है। स्कूल्स को ब्यूटीफाई करने के हवाले से सेकेंडरी विंग के जो हेड मास्टर साहबान है, प्रिंसिपल साहबान है, उन्होंने बहुत काम किया है। और हम जो गवर्नमेंट का मिशन है, गवर्नमेंट का विजन है कि सरकारी स्कूल्स को मेयारी स्कूल बनाना है, उसको हम उस मिशन को पूरा करने के लिए जो भरपूर अपना जो हिस्सा डाल रहे हैं। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को आइंदा सेशन के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं ताकि मुल्क के नौनहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। 607 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और उन तमाम हेड्स ने, उन स्कूल्स के तमाम हेड ने जो है वो एडमिशन डेस्क एस्टेब्लिश किए हुए हैं। मज़ीद ये उन्होंने लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ रब्ता करके हमारे जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म का अहतमाम किया है। अभी रमज़ान शरीफ में उन्होंने जो है रमज़ान पैकेजेस की सूरत में भी हमारे हेड्स ने जो है वो बच्चों की असिस्टेंस की है। सरदार मोहम्मद साजिद का मजीद कहना था कि हुकूमत बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम कर रही है, ताहम तलबा के लिए यूनिफॉर्म समेत दीगर जरूरियात मुखैर हजरात के ताउन से पूरी कर रहे हैं ताकि वालिदैन पर बच्चों के तालीमी अखराजात का माली बोझ न पड़े। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि टीबी का आलमी दिन। चिन्योट में टीबी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक, डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल की खसूसी शिरकत। और कहा कि जिले में टीबी के मुकम्मल इलाज और मुआवजे और तशखीस की सहूलियात मौजूद हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टीबी एसोसिएशन चिन्योट के ज़ेर एहतमाम टीबी क्लिनिक में आगाही तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, MSDHQ डॉक्टर अहमद खान, सेक्रेटरी टीबी एसोसिएशन शौकत आजाद, डॉक्टर खालिद यासीन, राजा रियाज, मियाँ यूसुफ ख्याली शरीक हुए। MSDHQ हस्पताल डॉक्टर अहमद खान का कहना है कि टीबी की अलामत जाहिर होने की सूरत में फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी चिन्योट के जो शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि एहतियात एहतियात और एहतियात, क्योंकि एक जो टीबी का मरीज़ है वो मज़ीद 10 मरीज़ों को इन्फेक्शन फैला सकता है। जनरल सेक्रेटरी टीबी एसोसिएशन शौकत हुसैन आजाद का कहना है कि 1963 से टीबी का मुकम्मल इलाज मुआवजा मुफ्त फराहम कर रहे हैं। सालाना सैकड़ों अफराद का टीबी इलाज किया जा रहा है। जो टीबी एसोसिएशन है ये 1963 से कायम है और ये बिल्डिंग भी उसी ने बनाई है और वो शुरू से लेकर आज तक इलाज कर रही है। लाखों मरीजों का उन्होंने इलाज किया है। अब जो WHO के तहत इनकी अद्वियात आती हैं, ये पहले 1 साल का था, फिर 9 माह का हुआ, अब 6 माह का इलाज है। वो इलाज जो करेगा वो इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएगा। जिले में DHQ अस्पताल और टीबी क्लिनिक्स में टीबी इलाज का 6 माह का मुकम्मल कोर्स करवाया जाता है। फैसलाबाद डिवीजन में स्पेशल बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम। झंग में 900, टोबा टेक सिंह में 890 खुसूसी बच्चों को तोहफे दिए गए। अहमदपुर से आल जड़ावाला कमालिया में भी छोटी ईद की खुशियां बांटी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में हुकूमत की तरफ से स्पेशल बच्चों में ईदी तकसीम, ईदी बैग्स गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के खसूसी बच्चों के हवाले किए। AC जुल्कुरनैन, DO स्पेशल एजुकेशन खालिदा परवीन की खसूसी शिरकत, प्रिंसिपल स्कूल महक इरम समेत असातिज़ा और दीगर तलबा भी मौजूद थे। झंग में 900 से ज्यादा खुसूसी बच्चों में तहाइफ तकसीम। डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, महकमा तालीम के अफसरान की शिरकत। तहाइफ मिलने पर बच्चों के चेहरों पर खुशी के रंग नुमाया। डेप्यूटी कमिश्नर का खुसूसी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मजीद इकदामात का ऐलान। शुरा की जानिब से तहाइफ तकसीम करने का इकदाम खुश आइंद करार। टोबा टेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने जिला के 890 बच्चों में ईद के तहाइफ तकसीम किए और कहा कि हुकूमत का स्पेशल बच्चों में ईद तहाइफ तकसीम करना अहसन इकदाम है।
कमालिया में स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम। तकरीब में तहसील सदर मुस्लिम लीग नून सरदार रहील अनवर गुज्जर, साबिक सदर बार महर फतेह शेर बघेला, प्रिंसिपल गुलाम मुर्तजा बघेला, लीगी तहसील यूथ कोऑर्डिनेटर वसीम गुज्जर, राना रऊफ और दीगर ने शिरकत की। सरदार रहील अनवर गुज्जर ने कहा कि स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट भेजना काबिल तारीफ है। अहमदपुर सियाल में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों में स्पेशल ईदी बैग तकसीम। हेडमास्टर जुल्कुरनैन गोंदल ने समाजी रहनुमा के हमरा बैग्स तकसीम किए और कहा कि वजीर आला की स्पेशल बच्चों को ईदी देना मुस्तहसन इकदाम है। जड़ांवाला के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर अंजेब गुराया की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्पेशल बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गिफ्ट तकसीम का मकसद सबको ईद की खुशियों में शामिल करना है। ईद गिफ्ट से बच्चों में प्यार और मोहब्बत का एहसास पैदा होगा। छोटी ईद करीब, कोई शॉपिंग करने में मसरूफ तो कोई पैसे कहां से आएंगे सोचने पर मजबूर। फैसलाबाद में शूज मार्केट के दुकानदार ग्राहकों का करने लगे इंतजार। दर्जियों के नखरे भी हजार। मेहंदी और ज्वेलरी की दुकानों पर खरीदारों की भरमार। खातीन कढ़ाई वाले कपड़े और मेहंदी धड़ाधड़ खरीदने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की आमद में एक हफ्ता बाकी रह गया। फैसलाबाद की बड़ी शूज मार्केट की रौनकें बहाल ना हो सकी। दुकानदार ने बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा कर दिया। दुकानदारों का कहना था कि ग्राहक अभी ना पहुंचे। महंगाई ने ग्राहकों को मार्केट से दूर रखा हुआ है। जब से ये महंगाई वगैरह हुई है ना, कस्टमर का इंतजार ही रहता है आ जाए। मेरा ख्याल ये तीसरा कस्टमर है सुबह का जो हमारे पास आया है। इतने हम परेशान। फैसलाबाद खातीन की ईद की शॉपिंग जारी। खातीन ने छोटी ईद पर मेहंदी खरीदने की ठान ली। मेहंदी की भीनी महक खातीन के दिल को लुभाने लगी। सुर्ख रंग की मेहंदी और ब्रांडेड मेहंदी की डिमांड में इजाफा। सेक्टर वाली आसान मेहंदी भी खातीन की तवज्जो का मरकज। खातीन कहती हैं कि मेहंदी के बगैर ईद नामुमकिन है। मेहंदी की खरीदारी के लिए गए हैं। आप देखें कब कहाँ से कोई डिजाइन अच्छा लगता है, हम भी स्टिकर्स ही देंगे, क्योंकि आप कहाँ से बंदे इतना मेहंदी वाली ढूंढे उनकी मिन्नतें करें। ईद की आमद चिन्योट के बाजारों में खरीदारों का रश। मर्दो खातीन ने झुमरा रोड पर वाक़े शरीफ फैब्रिक्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि कढ़ाई वाले सूट शरीफ फैब्रिक से मिल जाते हैं। अब खरीदारी के लिए फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं। शरीफ फैब्रिक्स वाले जो हैं इनका माशाल्लाह ना जी म्यार जो है वो बहुत अच्छा है। पहले हमें फैसलाबाद जाने की जरूरत पड़ती थी और बहुत खज्जल ख्वार होते थे, तो अब माशाल्लाह हमारे चनियोट में ही हमें वो तमाम सहूलतें और वो म्यार हमें चनियोट में मिल रहा है। जड़ावाला में ईद में कुछ दिन बाकी। दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ गया। नया सूट सिलवाने के लिए बेताब दर्जियों ने बंद बुकिंग कर दी। शहरी कहते हैं कि ईद पर नया सूट जेबतन करना हमारी रिवायत है। नया सूट सिलाई करवाना है। टेलर्स ने बुकिंग बंद कर दी, जबकि दर्जियों का कहना है कि ईद की वजह से रश बढ़ जाता है। पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी अपनाई हुई है। नाजरीन, फैसलाबादियों को छोटी ईद पर बड़ा डिस्काउंट। अब नए जूतों की फिक्र नहीं। जावेद फुटवेयर डी ग्राउंड पर आए। 50% रियायत पर नए जूते ले जाएं। कोई बेखबर ना रहे। जावेद फुटवेयर ने लेमोजीन पर शहर भर में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं तलहा बाजवा। फैसलाबाद में जावेद फुटवेयर डी ग्राउंड की जानिब से शहरियों को ईद उल फितर का तोहफा। जूतों की खरीदारी पर 50% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया गया। लेमोजीन पर शहर भर में एडवर्टाइजमेंट जारी। सीईओ जावेद फुटवेयर अहमद जलंधरी कहते हैं कि डिस्काउंट ऑनलाइन भी मैसर है। मुनफरिद अंदाज में एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। ईद उल फितर तक हर तरह के शूज पर डिस्काउंट है। मॉडर्न शूज भी डिस्काउंट रेट पर मिलेंगे। हमारा ऑनलाइन स्टोर है और ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिलीवरी करते हैं और डेली के हमारे 500 से 600 पार्सल्स निकलते हैं डेली। टायर स्टॉक में मैं अपने आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि JFW एक ऐसा ब्रांड है, बेसिकली हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हम रोज नए डिजाइन बनाते हैं और अपनी आवाम को देते हैं, और वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइसेस में। दुकान पर आने वाले ग्राहकों ने सेल को खूब सराहा और कहा कि ईद के मौका पर डिस्काउंट से हर कोई अच्छे शूज खरीद सकता है। 50% यहाँ पे ऑफ ली है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ इनका पास 2 ईयर से, बट दिस टाइम जब मैं आया तो मुझे यहाँ पे 50% ऑफर जो है वो अवेल करने का मौका मिला है। तो मेरी और भी सारे कस्टमर से यही रिव्यू है कि यहाँ पे आएँ एंड 50% ऑफ अवेल करें। जावेद फुटवेयर की जानिब से मुनफरिद अंदाज में की जाने वाली एडवर्टाइजिंग से शहरी मुतासिर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ तलहा बाजवा, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि ईद करीब। फैसलाबाद में छोटी ईद की बड़ी खुशियां अरूज पर पहुंच गई। खातीन कपड़ों की शॉपिंग मुकम्मल करके ज्वेलरी की खरीदारी भी शुरू कर दी। नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी रंगों के झुमके खातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। तफसीलात मरियम दसा की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में छोटे झुमके या फिर बड़े झुमके, खवातीन ज्वेलरी खरीदने में दिलचस्पी लेने लगी। नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी रंगों के झुमके खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। खवातीन कहती हैं कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदना लाजिम व मलजूम है। बहुत स्ट्रगल की होती है सहरी इफ्तारी में, ये उनका क्रेडिट है कि वो करें सब कुछ।
खूबसूरत और नए नित डिजाइन की ज्वेलरी खरीदना खवातीन की अवलीन तरजीह। खवातीन कहती हैं ईद की शॉपिंग सहरी और इफ्तारी बनाने का तोहफा है। अपनी शॉपिंग के बाद बच्चों की शॉपिंग करेंगे। बच्चों की शॉपिंग जारी है, लेकिन बच्चों की फरमाइशें तो खत्म ही नहीं होती हैं, बस कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। ईद में दिन कम मुकाबला सख्त। खवातीन की ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी। कैमरामैन अकील आकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में दरबार आलिया सहाबा शरीफ पर हजरत पीर सैयद मोहम्मद शाह मरूफ घोड़ियां वाली सरकार और हजरत पीर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह बुखारी मोतियां वाली सरकार का 79वां उर्स की तकरीबात। अकीदतमंदों की ढोल की थाप पर धमालें, मेले मुख्तलिफ रिवायती खेलों से शहरी खूब महसूस हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज की इस रिपोर्ट में। तब्दील हो गया तो शहर के मुख्तलिफ शहराओं पर ऐनक और टोपियों के स्टॉल्स लग गए। शहरियों ने ऐनक और टोपी की खरीदारी शुरू कर दी। सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए ऐनक लाजमी करार। शहरी कहते हैं गर्मी बहुत बढ़ गई है, एहतियात करनी चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप भी बहुत ज्यादा है और हम लोगों को बाइक चलाते हुए खास तौर पे इसका बड़ा मसला बनता है, नजर नहीं आता आगे धूप की वजह से। तो ग्लासेस जो है बहुत जरूरी हैं। बाइक के ऊपर ये है आपके पास कैप भी होना चाहिए, हेलमेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट जरूरी हो, उसके अंदर ग्लासेस जरूरी होनी चाहिए। शहरी कहते हैं बाइक चलाते हुए ऐनक का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। टोपी धूप से बचाती और आंखों को ठंडक देती है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।